عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کانگریس کو لگا بڑا جھٹکا، ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے پرنب مکھرجی کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی۔ جموں ایئر فورس اسٹیشن حملے کے لیے آئی ای ڈی میں استعمال ہوا RDX اور نائٹریٹ صرف جیش یا لشکر کا کام نہیں۔ انلاک 4 بہار میں 7 جولائی سے اسکول اور کالج کھولنے کی اجازت۔ IT ایکٹ کے منسوخ سیکشن کے تحت FIR درج ہونے پر سپریم کورٹ حیران۔ اجمیر میں بقرعید کے سلسلے میں جوش و خروش، بکرا منڈی میں بکروں کا آنا شروع۔ صحافی لاک ڈاؤن میں بہت سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ویٹیکن کے اہم انتظامی افسر کارڈینل سمیت 10 افراد پر بدعنوانی کا الزام۔ وزیر اعلیٰ نے مودی حکومت سے پھر کیا مناسب مقدار میں ویکسین فراہمی کا مطالبہ۔ راجستھان سے آئی خبر، RSS کے قول اور فعل میں زمین و آسمان کا فرق، مایاوتی کا بیان۔ براعظم افریقہ میں پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیوں کی چاندی۔ چلی آئین ساز پارلیمان میں حلف برداری، سڑکوں پر مظاہرین کا احتجاج۔ ہمارے نزدیک اپنے پانی کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت میں کوئی فرق نہیں، صدر ایردوغان کا بیان۔ سبیہا گیوکچین ہوائی اڈے پر کورونا وائرس کے بعد مسافروں کے آمد و رفت کا نیا ریکارڈ۔ اسرائیل میں یومیہ کورونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ تھائی لینڈ فیکٹری میں زوردار دھماکے سے محنت کش زخمی۔ تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا، طالبان ترجمان کا بیان۔ نائجیریا میں مسلح حملے، 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ آذربائیجان بلند ہوئے شعلوں کا سبب آتش فشاں تھا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی اس کے علاوہ مشترکہ قربانی کے لیے نہ الگ نمبر دے دیا گیا ہے، جن احباب کو انکوائری کرنا ہے، تفصیلات لینا ہے، وہ اس نمبر پر میسج کر دیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلے خبر کی۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے بیٹے اور کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ ابھیجیت مکھرجی آج ترنمول کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں۔ ترنمول بھون میں منعقدہ تقریب میں ممبر پارلیمنٹ سدیپ بندو اپادھیائے اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل پارتھیو چٹرجی کی موجودگی میں انہوں نے ترنمول کانگریس کی رکنیت لی۔ ریاستی وزیر پارتھیو چٹرجی نے کہا کہ مکھرجی نے پارٹی کے جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی سے ملاقات کی تھی اور اس موقع پر انہیں ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ناظرین جموں کے ہائی سیکورٹی والے ہوائی اڈے احاطے میں واقع ہندوستانی فضائی کے اسٹیشن پر ڈرون حملے میں استعمال IED کو RDX اور نائٹریٹ کے مرکب سے تیار کیا گیا تھا۔ ڈرون حملے کی جانچ میں مصروف فورینسک ایکسپرٹس نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ جانچ افسران نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈرون کے ذریعے گرائے گئے دھماکہ خیز مواد کو RDX اور دیگر کیمیکل کے مرکب کا استعمال کر کے بنایا گیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین بہار میں کورونا انفیکشن کے معاملے میں آئی کمی کے بعد آج ریاستی حکومت نے انلاک 4 کا اعلان کرتے ہوئے 7 جولائی سے اسکول اور کالج کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آفات مینجمنٹ گروپ CMG کی میٹنگ کے بعد خود سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے اس بات کی اطلاع دی ہے اور انلاک 4 میں دی گئی رعایتوں کے متعلق جانکاری دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کی صورتحال جائزہ لینے کے بعد سبھی سرکاری و غیر سرکاری دفاتر کو معمول کے مطابق کھولنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اب جنہوں نے ٹیکہ لے لیا ہے وہ لوگ دفاتر میں داخل ہو سکیں گے۔ ناظرین سپریم کورٹ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66A کے تحت FIR کی اندراج پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے شیریہ سنگھل کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے سن 2015 میں متعلقہ قانون کی دفعہ 66A کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اس دفعہ کے تحت FIR درج کی جا رہی ہے۔ جسٹس RF روہنگٹن کی سربراہی والی ڈویژن بینچ نے پیپلز یونین فار سول لبرٹیز PUCL کی درخواست کی سماعت کے دوران مرکزی حکومت کو اس سلسلے میں جواب طلب کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ ناظرین راجستھان میں اجمیر کی مسلم کمیونٹی نے آئندہ عید الاضحیٰ کے بارے میں جوش و جذبے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور قربانی کے لیے اجمیر بیور روڈ پر بکرا منڈی میں بکروں کا آنا شروع ہو چکا ہے۔ بقرعید 21 جولائی بروز بدھ کو منائی جا سکتی ہے اور بکروں کی قربانی دینے کے لیے بکرا فروش اور گراہک نے بکرا منڈی میں آنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ مارکیٹ پوری طرح سے آباد نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں چہل پہل اس وقت شروع ہو چکے ہیں، بلکہ پورے بھارت کا منظر ہے۔
नाज़रीन, मुख्तलिफ ज़बानों मीडिया के सहाफ़ियों पर मुश्तमिल पत्रकार विकास फाउंडेशन के एक वफ़द ने महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की और सहाफ़ियों के मसाइल पर अपने एक महज़रनामा पेश किया है और गवर्नर मौसूफ ने इसे पढ़ा और बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। गवर्नर कोश्यारी ने बताया कि उन्होंने उर्दू सीखी है, पढ़ भी लेते हैं, बड़ी मीठी ज़बान है, इसके अशार बहुत बड़ी दास्तां एक सतर में बयान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल यकीनन संगीन हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी है वो तवज्जो नहीं देते। इस मौके पर सरफराज आरजू मालिक व मुदीर रोज़नामा हिंदुस्तान ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन सहाफ़ी जो दुनिया के मसाइल उठाता है उनके बारे में लिखता है, खुद अपने मसाइल बयान नहीं कर पाता है और ना ही लिख सकता है। नाज़रीन, वेटिकन ने बदउनवानी, गबन, मनी लॉन्ड्रिंग, फराड, भत्ताखोरी और अहदे के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में इटली के मारूफ कार्डिनल समेत 10 अफराद को नामजद कर दिया है। कार्डिनल अनेगलो बेटियो वेटिकन में अहम इंतजामी अफसर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा माली यूनिट की जानिब से वेटिकन के 2 मज़ीद अफसरान पर लंदन में एक इमारत की खरीदारी से मुतालिक करोड़ों यूरो के स्कैंडल में मुलव्वस होने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा 27 जुलाई को मुकदमा भी चलाया जाएगा। इस ट्रायल के बायस रोम के अक़ब में वाक़ छोटे से शहर में मीडिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। इस मामले में पोप फ्रांसिस का अज़्म ज़ाहिर करता है कि वो वेटिकन के माली उमूर को ठीक करने पर जोर दे रहे हैं, चाहे ऐसी उमूर की समाअत अवामी सतह पर ही क्यों न की जाए। नाज़रीन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज़ी हुकूमत से आज फिर रियासत को मुनासिब मिक़दार में वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा किया है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए मुतालबा करते हुए कहा कि रियासत में वैक्सीन की तकरीबन 70,000 खुराकें बची हैं जो आज लगाई जाएंगी। वैक्सीन की किल्लत की वजह से आज बेशतर अजला में वैक्सीनेशन का काम बंद है। राजस्थान को ज़रूरत के मुताबिक मरकज़ की जानिब से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बार बार वैक्सीनेशन का काम रुक जाता है। इल्ज़ाम उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर लगाया है। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पीर को कहा है कि आरएसएस के कौल फ़ैल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और यही वजह कि आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाली मरकज़ों रियासत की बीजेपी इक़्तिदार में मुल्क की अक़लियतों के दिल में सिक्योरिटी की फ़िक्र घर कर गई है। संघ सरबराह मोहन भागवत ने इतवार को गाज़ियाबाद में दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए मायावती ने कहा कि मरकज़ और उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमतें चल रही हैं, बीजेपी आइन की सही इंसानी मंशा के मुताबिक चलने के बजाय आरएसएस के घटिया एजेंडे पर चल रही है, जिसकी वजह से समाज और मुल्क में माशी शोबे में भी हर तरफ बेचैनी, लाकानूनियत, तशद्दुद, तनाव और अफरा-तफरी का माहौल है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के जरिए सभी मज़ाहिब के लोगों का डीएनए एक होने और हुजूमी तशद्दुद, हिंदुआ के खिलाफ होने वगैरह की जो बात कही गई है वो किसी के गले के नीचे से आसानी से उतरने वाली नहीं, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के उनकी हुकूमतों की भी कौल फ़ैल में फ़र्क सभी देख रहे हैं। नाज़रीन, अफ्रीकी बराअज़म के साहिल खित्ते के ममालिक माली, नाइजर और बर्किना फासो में गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दाना हमलों और नस्ली तासुब पर मबनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 5,000 के करीब इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। फ्रांसीसी फ़ौज इसी इलाके में ऑपरेशन बरखाने अगस्त सन 2014 से जारी रखी हुई है। रवां बरस की गर्मी की शुरू होने पर फ्रांस ने मज़ीद 5,000 फ़ौजी और पेशावर मुसल्लह अफराद को मुतासिरा इलाके में मुतय्यन किया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने ऐलान भी कर रखा है कि नई तैनाती में बेशतर अफराद को रवां बरस के इख्तिताम से कबल वापस बुला लिया जाएगा। नाज़रीन, चिल्ली में आइनसाज पार्लिमान के अरकान ने हलफ उठा लिया है। पार्लिमान मुल्क के लिए नया आइन मुरतब करेगी, जिसका मकसद फ़ौज आमिर अगस्टो पनोशे के दौर से चले आ रहे कवानीन को तब्दील करना चाहते हैं। पार्लिमान की हलफ बर्दारी के मौके पर सांतियागो में पार्लिमान के करीबी मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि माहियत के एतबार से हमारे नज़दीक अपने पानी की हिफाजत और अपने मुल्क की हिफाजत में कोई फ़र्क नहीं है। सदर एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत अन्कारा में सदारती पैलेस के सोशल कॉम्प्लेक्स में पानी की ताकत का मिल्लत से तारुफ नामी इज्तिमाई इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की थी। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हम तुर्की के आबी वसाइल के मौसर तरीन और मुफीद तरीन इस्तेमाल को निहायत अहमियत देते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल सबिहा ग्योकचेन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले मुसाफिरों की तादाद 99,506 तक पहुंच चुकी है, जो कि कोरोना वायरस की वबा में कायम होने वाला यह नया रिकॉर्ड है। कोविड-19 वबा में हालात को मामूलात पर लाने, वैक्सीन लगाने में सूरत के बाद से हवाबाजी की सनत पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होने शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 99,506 मुसाफिरों ने इस्तांबुल सबिहा ग्योकचेन हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया। ये तादाद कोविड-19 वबा के दौरान और 2021 में सबिहा ग्योकचेन हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा तादाद के तौर पर रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, इसराइल में कोरोना वायरस की भारतीय शक्ल डेल्टा वेरिएंट की वजह से हालिया 3 माह के दौरान यौमिया मरीजों की तादाद बुलंदतरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। इसराइली वज़ारत सेहत की जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक हालिया 24 घंटों में 343 अफराद
को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है। बयान में इस तादाद को इसराइल में हालिया 3 माह की बुलंद तरीन तादाद कबूल किया गया है और मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइल में नए कोरोना केसेस के 90% में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट शक्ल की तशखीस हुई है। नाज़रीन, थाईलैंड दारुल-हुकूमत बैंकॉक के जुनूब मशरिकी इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में ताहलीम न होने वाले असबाब से एक धमाका पेश आया जिस दौरान कम से कम 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बांगफेन में प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में मकामी वक्त के मुताबिक रात गए लगभग 3 बजे धमाका हुआ जिसके बाद इलाके के मकीनों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि धमाके के असरात को महसूस किए जाने वाले जवार के सवार नब हवाई अड्डे पर परवाजों में किसी किस्म का कोई खलल नहीं आया। नाज़रीन, अफगान तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन का अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला से मुतालिक कहना है कि तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से जाना होगा वरना रद्द अमल देंगे। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजी इनखला के बाद फौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। सुहेल शाहीन ने कहा कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर रद्द अमल देंगे और हतमी फैसला तालिबान क़यादत का होगा। नाज़रीन, मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के 2 मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह हमला हुआ है जिसमें 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। कादोना सूबे के कमिश्नर बराए उमूर दाखिला व सलामती सामिल एर्दोगान के मुताबिक ये हमला बाज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने सूबे काकाओ और टसोहोन गाया नामी इलाकों में किया है जिसमें 7 अफराद हलाक व मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। मुल्क में हालिया अयाम के दौरान मुसल्लह मोटरसाइकिलों के हमलों के बाइस बाद सूबों में मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी है। नाज़रीन, बताया गया है कि बहरे कैस्पियन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके का सबब कीचड़ से भरा एक आतिशफ़शा का फटना था। अज़रबैजान की सरकारी ऑयल कंपनी सोकार के मुताबिक गुज़िश्ता शब बाको के करीब साहिल में शोले उठते दिखाई दिए जिनका सबब 30 किलोमीटर दूर ताशली नामी जजीरे पर मौजूद एक आतिशफ़शा फट चुका था जहाँ आग बुझाने का अमल जारी है। बयान में बताया गया कि पेट्रोल गैस के ज़ख़ायर में इससे कबल भी आतिशफ़शा के फटने के नतीजे में मेथियन और दीगर आतिशगीर गैसों के अखराज पर आग लग चुकी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।